Good morning, student. Today I will discuss a next topic, that is saving function. Actually, saving function express the functional relationship between income and saving. Okay, saving function express the functional relationship between income and saving. Actually, functional relationship means direct relationship between income and saving. And direct relationship means if our income increases, saving will also increases. If our income decreases, saving will also decreases. Both income and saving are increase and decrease simultaneously. Both move in the same direction. It is known as saving function. Saving function इनकम और सेविंग के फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है. ठीक है, सेविंग फंक्शन जो है वो ये एक्सप्रेस करता है कि इनकम और सेविंग के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है. फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग के बीच में. डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी सेविंग भी इंक्रीज होगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी. यानी इनकम और सेविंग दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ डिक्रीज होंगे. दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग में. तो इनकम और सेविंग में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उस डायरेक्ट रिलेशनशिप को कौन शो करता है? सेविंग फंक्शन. Saving function express the direct relationship between income and saving. Okay. In this equation, S refers to saving, and this saving is dependent variable. Actually, saving is depend upon income. Saving does not change itself. Saving change due to change in income. Our saving increase due to increase in income. Our saving decrease due to decrease in income. It means saving depend upon income. That's why saving is dependent variable. And income is independent variable because income does not depend upon saving. So income is independent variable. Okay, we can further explain this saving function with the help of saving schedule. In this saving schedule, we take income as well as saving. Our income increase from 40 rupees to 80 rupees. So our saving will also increase from 20 rupees to 40 rupees. Similarly, if our income increase from 80 rupees to 120 rupees, then saving will also increase from 40 rupees to 60 rupees. It means our income and saving both are increased simultaneously. It shows direct relationship between income and saving. This direct relationship is also expressed by saving function. Is okay. Due to direct relationship, the saving curve will be upward sloping curve. We can draw a diagram with the help of this saving schedule. We take income on x-axis 40, 80, 120, 160. It is our level of income. We take income on x-axis and saving on y-axis. Our saving is 20 rupees, 40 rupees, 60 rupees, 80 rupees. These are the level of saving. And 40, 80, 120, 160. These are the level of income. We take income on x-axis and saving on y-axis. Okay.
If our income is 40, then saving is 20. If our income is 40, then saving is 20. If our income is 80 rupees, then saving is 40 rupees. If our income is 120, then our saving is 60 rupees. These are the 3 points A, B, C. If we join these 3 points by a curve, this curve is known as saving curve, and this saving curve is upward sloping curve because there is a direct relationship between income and saving. In this saving schedule, income and saving both are increased simultaneously. It shows direct relationship between income and saving. That's why saving curve is upward sloping curve. Okay, it is known as saving function. तो सेविंग फंक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन में आपने पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन में भी इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, इनकम डिक्रीज होती है, कंजम्पशन डिक्रीज होता है। कंजम्पशन फंक्शन के अंदर भी इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप थी। बिल्कुल इसी तरह से सेविंग फंक्शन के अंदर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। तो इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को जो शो करता है वो कौन शो करता है? सेविंग फंक्शन। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को इन्होंने नाम दिया है फंक्शनल रिलेशनशिप। इस तरह से सेविंग फंक्शन जो है वो इनकम और सेविंग के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। ठीक है, इस तरह से इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से सेविंग कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जैसे कि हमने अभी इस शेड्यूल में देखा कि हमारी इनकम 40 से 80 इंक्रीज हुई तो सेविंग भी 20 से 40 इंक्रीज हुई। इनकम 80 से 120 इंक्रीज हुई तो सेविंग भी 40 से 60 इंक्रीज हुई। इट मीन्स हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है और सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ओके, जब हमारी इनकम 40 है तो सेविंग 20, इनकम 40 से 80 इंक्रीज हुई तो सेविंग भी 20 से 40 हो गई। फिर इनकम 80 से 120 इंक्रीज हुई तो सेविंग भी 40 से 60 क्या हुई? इंक्रीज हुई। ओके, इस तरह से इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को ही सेविंग फंक्शन एक्सप्रेस करता है। In short, saving function express the functional relationship between income and saving. Functional relationship means direct relationship between income and saving. If our income increase, saving will also increase. If our income decrease, saving will also decrease. Okay? ये था आपका सेविंग फंक्शन। लेकिन सेविंग फंक्शन की एक और इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो अभी आपने ये देखी, S इज इक्वल टू एफ वाई, ये भी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है। सेविंग फंक्शन की एक और इक्वेशन है। अब वो जो दूसरी इक्वेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड जो इक्वेशन है वो ये है, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये भी आपका सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है। इसमें जो S है वो है इंड्यूस सेविंग। इंड्यूस सेविंग वो सेविंग होती है जो इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज। तो ये S जो है वो इंड्यूस सेविंग है। माइनस सी बार जो है वो क्या है? ऑटोनोमस सेविंग है। ऑटोनोमस सेविंग वो सेविंग होती है जिसमें सेविंग का अमाउंट सेम रहता है
चाहे हमारी इनकम 60 से 70 हो जाए, इंक्रीज हो, चाहे हमारी इनकम 70 से 50 हो जाए, चाहे हमारी इनकम डिक्रीज हो। इनकम चाहे इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, सेविंग का अमाउंट सेम रहता है। इसे कहते हैं ऑटोनोमस सेविंग, और ऑटोनोमस सेविंग को डिनोट करते हैं -C बार, सॉरी, तो ऑटोनोमस सेविंग इज डिनोटेड बाय -C बार। ओके, 1 - B, ये 1 - B क्या चीज है? MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जैसे इसमें सेविंग 20 से 40, सेविंग 20 से 40 कितनी इंक्रीज हुई? 20 इंक्रीज हुई। तो डेल्टा एस यानी चेंज इन सेविंग, यानी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 20 से 40, तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 20। डेल्टा एस कितना हो गया? 20। डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम, इनकम 40 से 80, इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 40 से 80, 40 इंक्रीज हुई। तो डेल्टा वाई कितना होगा? 40, क्योंकि इनकम 40 इंक्रीज हुई है। 0 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/4 को, 2/4 को हम लिखेंगे 1/2, सिंप्लीफाई करके 2 1 2 और 2 4, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। इसका मतलब MPS कितने निकल के आए? 0.5। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कैलकुलेट करके बताया है कि MPS कैसे कैलकुलेट करते हैं। MPS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, यहाँ पे MPS हमने कैलकुलेट करके दिखाया है, कितना आ गया? 0.5। MPS 0.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 50% सेविंग कर रहे हैं। MPS अगर 0.5 है यानी हम 50% क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। यहाँ पर 1 - B जो है वो MPS को क्या करता है? वो शो करता है। यानी MPS को जो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर 1 - B से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? ये जो Y है इस इक्वेशन में, Y जो है वो क्या है? हमारी नेशनल इनकम या हमारी लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। Y को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कहेंगे या नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको। इस तरह से सेविंग फंक्शन एक की जो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है वो ये है S = -C बार प्लस 1 - BY। S इंड्यूस सेविंग है, इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज, वो इंड्यूस सेविंग हुआ, इंड्यूस सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है। -C बार ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग वो होती है जिसमें सेविंग का अमाउंट सेम रहता है, चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो। 1 - B क्या है? MPS। ओके, और Y क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम या नेशनल इनकम। क्लियर? ये भी हमारा सेविंग फंक्शन है। अब इस सेविंग फंक्शन की हेल्प से अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सेविंग फंक्शन की हेल्प से। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपका सेविंग फंक्शन गिवन है S = -20 प्लस 0.3y। ये जो सेविंग फंक्शन है, ये सेविंग फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है आपको। क्लियर? ये S जो है क्या है? आपकी इंड्यूस सेविंग। -20 क्या है? -20 ऑटोनोमस सेविंग है। प्लस 0.3 क्या है? 0.3 जो है वो MPS है। और Y क्या है इसमें? इनकम। ये सेविंग फंक्शन आपको गिवन है। इसके साथ साथ आपको इनकम भी गिवन है, वो कितनी है? 1000। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको सेविंग फाइंड करनी है और कंजम्पशन फाइंड करना है इस सेविंग फंक्शन की हेल्प से। ओके, अब देखिए हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे।
आपको दे रखा है s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.3y, ये आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड करना है इसमें सेविंग, बहुत ही इजी है सेविंग फाइंड करना। s आपका ऐसे रहेगा, -20 ऐसे रहेगा, 0.3 ऐसे रहेगा। ये जो y है, इस y की जगह क्या लिख सकते हैं, जो इनकम आपको दे रखी है 1000, ये 1000 इस y की जगह पर आ जाएगी, क्योंकि इनकम गिवन है तो इनकम की जगह हम 1000 लिखेंगे। अब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.3 से, 0.3 इंटू 1000, ये हो जाएगा आपका 300, प्लस ये क्या है आपका -20 और ये सेविंग। s ऐसी रहा, -20 ऐसी रहा, प्लस ऐसी रहा, 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। अब 300 जो है वो प्लस का है, -20 जो है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, वो आप जानते हैं। 300 -20, तो ये हो जाएगा आपका 280। 280 क्या निकल के आए आपकी सेविंग, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको कंजम्पशन। एक्चुअली इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इस क्वेश्चन में इनकम दे रखी है 1000, तो y की जगह क्या लिखेंगे 1000। कंजम्पशन फाइंड करना है तो ये c ऐसी रहेगा। सेविंग आप फाइंड कर चुके हो 280, ओके। इनकम 1000 ऐसी रहेगी, सेविंग यहाँ 250 प्लस की है, जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, 280 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ऐसे रहेगा, और इक्वल टू के बाद जो c है राइट हैंड पर, वो c राइट हैंड पर ऐसे रहेगा, ठीक है। 1000 में से 280 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 720 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन है 720, सेविंग है 280, और आपकी जो इनकम है वो कितनी है 1000। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करनी थी, एक तो सेविंग फाइंड करनी थी, वो आपने फाइंड कर ली, इस सेविंग फंक्शन की हेल्प से सेविंग फाइंड कर ली 280 रुपीज़, और एक कंजम्पशन फाइंड करना था, वो भी आपने इस इक्वेशन से आपने कंजम्पशन फाइंड कर लिया, वो टू 720। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम इसी सेविंग फंक्शन की बेसिस पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।